Good morning students, how are you? I hope you will good and fine. Dear student, today we are going to start chapter 17 data handling. In data handling, we will learn how to arrange a numbers in how arrange data in according to tabular form. Okay, so let's start chapter 17 data handling. Chapter 17 data handling. So first of all, what is data? In our mind, first question that in our mind comes that what is data? So first of all we will write data. Heading data and write the information collected in the form of numerical figures. The information collected in the form of numerical figures in a survey called data. Right? The information is collected by in numerical form in numerical form या फिगर in survey called डेटा. तो सिंपल सा है, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल फिगर में सर्वे के थ्रू लाया जाता है तो उसे कहते हैं डेटा. ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए. सपोज जैसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक, कैसे देखिए. जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. सपोज करो आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं. ठीक है. नाउ उसमें प्रेजेंट कितने हैं, सपोज करिए प्रेजेंट आपके 45 है. ओके. एब्सेंट कितने हैं, इसमें एब्सेंट 4 है. ठीक. एंड मान लीजिए एक बच्चा लीड दिया पहले से. ठीक है. तो इस तरह से आपका फॉर्म हो गया. इस तरह से ये शो करेगा आपका डेटा. ठीक है. तो इसे एग्जांपल के तौर पे इसे राइट कर लीजिए आप लोग. नाउ स्टूडेंट, हाउ टू राइट डेटा इन टेबुलर फॉर्म. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टेबुलर फॉर्म. टेबुलर in tabular form, this is the easiest way to collect data in this process. Suppose that if Sachin made 1100 run in, यहाँ राइट ईयर 1100 रन. ठीक है. 1998 1100 रन इन 1998. ओके. नाउ सहवाग मेड 1200 रन इन 1999. विराट make 1500 run in 2000. So this is the process how to collect a number or data. ये प्रोसेस होता है, इसी के थ्रू हम फाइंड करते हैं डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं टेबुलर फॉर्म. इसी प्रोसेस को राइट करते हैं टेबुलर फॉर्म के रूप में. ओके. तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लीजिए.
Now, my dear student, we are going to start and explain pictograph. What is the meaning of pictograph? Pictograph. Pictograph. In pictograph means a image, a pic which is showing the number of object, that is called pictograph. Suppose that if I make a bulb, suppose that this is a bulb, this is a bulb, okay, and this bulb means equal to 10 bulb. So this pic is showing, so this pic will show number of 10 bulb, okay. So if you want to show 30 bulb, then you will make 3 images of this, 3 pic. 30 bulb equal to 3 times. You will make 3 times, okay, because 1 bulb equal to 10, so 3 bulb equal to 30. Okay, so we can say number of object showed by a image, a pic, that is called pictograph. Okay, let's see. Right now, definition of this pictograph. Right, number of object, if number of object showed by a pic called pictograph. Okay, note down. Now, my dear student, let me start activity 1. Activity 1. First of all, we will do question number 1. And question number 1 is given that a survey was conducted among a group of students about the subject they like most. एक सर्वे कंडक्ट किया गया और उसमें ये किया गया कि कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद है. Read the pictograph and answer the question that follow. First of all, I will make a pictograph. Okay. You can see pictograph. Activity 1. Okay. Now, English में number of books is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. English में number of book क्या है? 7. मैथ्स में है आपके हैं 10. EVS में 6 and हिंदी में 3. Now, given that one solution, one book equal to 5. One book equal to 5 student. One book equal to 5 student. It means एक बुक है उस शो कर रहा है 5 स्टूडेंट उसको लाइक करते हैं उस सब्जेक्ट को. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट विच सब्जेक्ट इज लाइक मोस्ट. एक आंसर मैं देता हूँ. जिसमें नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा होंगे वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा. तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. तो देखिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा बुक्स है ना. सो मैथ्स सब्जेक्ट मोस्ट लाइक्ड. मैथ्स सब्जेक्ट इज मोस्टली लाइक्ड.
मैथ्स सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो पहले का आंसर ये हो गया। कौन सब्जेक्ट, क्वेश्चन ये है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद किया जा रहा है, तो मैथ्स। ठीक है, नाउ बी क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ईवीएस, कितने स्टूडेंट्स को ईवीएस पसंद है। तो काउंट करते हैं ईवीएस में कितनी बुक्स है, 1 2 3 4 5 6। ईवीएस में 6 बुक है एंड 1 बुक इक्वल टू 5, दैट 6 बुक इक्वल टू 5 6 जा 30 स्टूडेंट। 5 into 6 30, so 30 student like EBS, दिस इज योर आंसर। 30 स्टूडेंट हैं वो EBS को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है। तो काउंट करते हैं नंबर ऑफ बुक्स, 1 2 3 4 5 6 7, हियर आर 7 बुक्स एंड 1 बुक इक्वल टू 5 स्टूडेंट, सो 7 बुक इक्वल टू 5 into 7। So number of 35 students who like English. So 35 students like English. Okay. Now in question number D, what is the total number of students who took in the survey, कितने स्टूडेंट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, दिस इज योर क्वेश्चन। सो कैसे करेंगे देखिए आप, कैन आई रेज, देखें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंग्लिश में कितने बच्चे थे, सब्जेक्ट में कितने बच्चे थे। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं, जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसको लाइक करने वाले स्टूडेंट कितने थे, कितनी बुक है उसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बुक्स है, तो 7 into 5। मैथ्स में आपका 10 बुक है, 10 बुक्स है, 10 into 5। नाउ ईवीएस में आपकी 6 बुक्स है, 6 into 5 हो गया। ठीक है, एंड हिंदी में 3 into 5। नाउ मल्टीप्लाई टू ऑल, 7 5 जा 35, 10 5 जा 50, 6 5 जा 30, 3 5 जा 50। नाउ ऐड ऑल ऑफ दिस, 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 3 8, 8 3 11, 1 12, 1 30। 130 students participate in the survey, so you will write total number of student equal to 130. Okay, this is your answer. Note down this. Now my dear student, डाटा हैंडलिंग इज सो इजी। आपको बस करना क्या है, आपको पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ में जो भी नंबर दिया है 1 इमेज के इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। ये काफ़ी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन 2 and 3 यू विल डन एंड आई विल सेंड यू PDF इन योर वीडियो सेक्शन, सॉरी यू नो मटेरियल, HTTP मटेरियल सेक्शन। You will see there and how to solution there, but before that you can solve, you will solve, because try करना सबसे important है। ठीक है, so I hope आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। इसके थ्रू आप लोग और भी क्वेश्चन जो 2 3 दिए उसे करोगे, सॉल्व करोगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, बाय बाय एंड ट्राई दैट।